get into the particulars of what this chapter is, what it entails. Uh, what we'll try to do is just try to get a background, right? That what are we trying to do with the help of this chapter, and basically the process that we'll follow um, to perform this to perform this kind of an analysis, right? So the thing is, this is one of those chapters in the uh, part of CS1 that is purely theoretical. ठीक है ऐसे this topic is very very practical in nature, but the way they have put this topic in the purview of our syllabus is that they have put it as a theoretical chapter. ठीक है तो अपने क्या करेंगे, we'll try to go to the concepts that they have introduced in this particular chapter. We'll try to understand what they are, right? And we'll try to uh, like get those key theoretical concepts into our into our into our understanding. ठीक है तो उसमें कोई भी दिक्कत हो कि क्या हम पढ़ रहे हैं क्या नहीं है, वो uh, वो please interrupt me at any point in time and ask that, right? What I want at the end of today's classes, I'll try to get done with the but what I want is आज की क्लास के बाद आप लोग एक बार है ना प्लीज इस चैप्टर को एंड टू एंड पढ़ना, ठीक है? सो दिस इज चैप्टर 1 इन योर थ्योरी या इन योर को रीडिंग मटेरियल, ट्राई टू रीड थ्रू द चैप्टर या अगर कोई भी दिक्कत हो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले तो बताओ, व्हेन यू हियर द टर्म डेटा एनालिसिस, द फ्रेज डेटा एनालिसिस, व्हाट कम्स टू योर माइंड कि हम क्या चीज की बात कर रहे हैं? व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? हाउ आर वी व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? सबसे पहले ये बात करते हैं, व्हाट एंड व्हाई। इस चैप्टर में द हाउ ऑफ डेटा एनालिसिस इज एक्सप्लेन्ड इन अ थ्योरेटिकल वे। अपने वहां जाने के पहले लेट्स कंसिडर द व्हाट एंड व्हाई ऑफ इट, राइट? What do you think is data analysis, and why do you think is there a need of data analysis in say the world in the world of say statistics, in the world of insurance, or in the world of say finance? बताओ, anyone, any ideas? बताइए यार, बताओ। कोई भी आइडिया? डेटा एनालिसिस में करोगे क्या यार? एक बात बताओ, लाइक एज अ टर्म सजेस्ट, मुझे कोई फैंसी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे कोई फैंसी मीनिंग नहीं चाहिए। आपको क्या लग रहा है? ठीक है, यू हैव अ बिग अमाउंट ऑफ डेटा in today's world. The data collection that the various kinds of companies, the variant kinds of organizations do is huge, right? Amount of data. Yeah. What can that data be, right? It can be data related to your consumer spending. If you're using a bank account, if you're using a UPI, if you're using a credit card, there's large amount of consumer data pertaining to you that these companies have, right? आपके consumption patterns they know very well, right? That what you have bought in the past, and using that they can predict what you will be buying into the future, right? For example, in the world of insurance, they have say now with things like Fitbits, right? Smart watches, they have data related to your personal health. Yeah, that how much physical exercise are you doing in a particular day, what are the kind of activities that you're involving yourself in, how sedentary your lifestyle is. So on the basis of that it can understand what is your average health level, right? And then it can understand कि आपको कितना premiums quote करना है, क्योंकि usually in the world of say health insurance or life insurance, policy who has a poor say lifestyle habit is charged higher premiums, right? So that's where the world of insurance comes in. Similarly, car insurance में आप लोग सुनोगे आजकल devices fit होने लगे हैं western countries में in your within your cars, right? And that will keep measuring आपने कितना ड्राइव किया, कैसे कैसे एरिया में ड्राइव किया, आपके एवरेज स्पीड क्या था ड्राइव करते वक्त। तो ऑल ऑफ दोज मेट्रिक्स then play a role in determining how your motor insurance premium changes the next time, right? So what I'm trying to say is that why do we need data analysis? This data analysis can help us reach to interpretable um, results, right? Results that we can take actions upon, right? Data in its raw form is very big, very large.
it does not make a lot of sense, right? अगर मैं आपको आज 1 लाख डेटा पॉइंट दे दूंगा, what will you do out of it? You won't be able to make any sensible conclusion out of it, right? So we'll have to employ data analysis. What we'll have to apply data analysis techniques to be able to express this data into a interpretable form. समझ में आया? बताओ सबको कि हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, व्हाट इज इट दैट वी आर ट्राइंग टू डू एंड व्हाई इज इट दैट वी आर ट्राइंग टू डू, राइट? इज दैट टू क्लियर? किसी भी चीज का 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, राइट? सो व्हाट एंड व्हाई we are discussing right now. How is what has been covered in the chapter, right? So you've been given a large amount of data. You need to be able to interpret it. You need to be able to make decisions on the basis of it, right? And when will you be able to do that? When you have certain in like that data in a form that can be interpreted, right? तो उसके लिए अपने आज प्रोसेस सीखेंगे कि उस डेटा एनालिसिस का प्रोसेस क्या है, व्हाट आर द वेरियस लाइक फॉर्म्स ऑफ डेटा एनालिसिस. यस और नो? अब देखो मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस है. व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मेक यू ऑल राइट एवरीथिंग कि डेटा एनालिसिस क्या होता है. I'll make you all write bits and parts which are there in the chapter itself just to give you all a flavor. बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जॉस्टिव है. आई वुड रियली सजेस्ट यू टू गो टू द CMP फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, क्योंकि इसमें ना गिवन क्लोज बुक एग्जाम्स भी अब देयर आर गुड चांसेस दैट यू माइट गेट सम स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 5 6 मार्क का क्वेश्चन, राइट? पहले आया हुआ क्लोज बुक एग्जाम्स में, वेल वर्स्ड विद द चैप्टर. ओके, so I'm right. Let's write a plain simple definition that they have given us in the book. They have said that data analysis, लिखो data analysis. What is data analysis में उन लोगों ने लिखा है, data analysis is the process by which data by which in it and analyzed data is gathered in its uh, raw state and or processed into information or processed into information which can be used for specific purposes. Which can be used for specific purposes. वही जो हम एनालाइज दैट डेटा, इंटरप्रेट दैट डेटा, जिसके बाद अपने उसको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी हम किन किन पर्पस की बात कर रहे थे, टू से गेट इन्फॉर्मेशन ऑन द हेल्थ ऑफ द insured, right? Yeah, to get some information on how the car has been driven in the past, right? So that is basically what is data analysis. The next part of the chapter, which is a more interesting one, is what are the forms of data analysis. ठीक है? So what they have done is they have basically talked about 3 key forms जो data analysis में होते हैं, और हम उन दोनों की बात करेंगे कि ये ये 3 जो फॉर्म्स हैं वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं. In the way they have put it, just that कभी कभार this data analysis might be an overlap of these ways as well. ठीक है? तो अपने विल नॉट बी अ स्टिकलर कि हमेशा ऐसा ही होता है, इन तीनों में से कोई एक ही चूज होगा. इट्स मोस्टली कि देयर इज एन ओवरलैप. ठीक है? आप तीनों का कोई कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हो. अभी अपने समझने की कोशिश करते हैं व्हाट आर दोस 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स, राइट? एंड विल टॉक अबाउट ईच ऑफ दोस फॉर्म्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ईच ऑफ देम, राइट? सो the next topic here is the 3 forms of data analysis. Just give us a minute. Let's write the heading. 3 forms of data analysis. And the first one that they're talking about here is descriptive. Okay,
तो किसकी बात करें? एक डिस्क्रिप्टिव बोल के एक डेटा एनालिसिस का फॉर्म होता है, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डिस्क्रिप्टिव मीन्स। अच्छा, वर्ड से क्या समझ में आ रहा है अपने? सबसे पहले ना इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग लेंगे चीजों की। जैसे डेटा एनालिसिस के बारे में सुना, समझा कि अच्छा नाम से ही समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। डेटा को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो, हाँ। अब उसके अराउंड वी पुट टेक्निकल जार्गन, राइट? जैसे गेट data gathering, then data processing, analysis, information that can be used for specific purpose, right? That is data analysis. What do you think descriptive analysis might mean? Anyone? Tell me, guys, what do you think? अरे डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या हुआ? What do you think is डिस्क्रिप्शन? वर्ड कहाँ से आ रहा है? डिस्क्रिप्शन से आ रहा है। डिस्क्रिप्शन क्या हुआ? डिस्क्राइब करना। तो व्हाट डू यू थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट हियर? जब अपने डेटा एनालिसिस में डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की बात कर रहे हैं, सो व्हाट डू यू थिंक वी आर ट्राइंग टू डू? एनीवन? बताओ क्या हुआ? सर मीन्स हम लोग को जो भी डेटा दिया हुआ है, जो भी हम लोग को हाँ हाँ सैंपल दिए हुई है, हाँ हाँ। मीन्स हम लोग को वो सैंपल कुछ बोलना चाहता है मीन्स, राइट तो वो एनालिस्ट है मतलब। राइट। सो दैट इज बेसिकली डेटा। अब व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज डेटा जो अपने रॉ फॉर्म में होता है, देयर इज ह्यूज अमाउंट। क्या उन डेटा पॉइंट से आप इंस्टेंटली कोई डिसीजन बना सकते हैं? बताओ हाँ कि ना। नो, यू कांट मेक इंस्टेंट डिसीजंस यूजिंग दैट पर्टिकुलर डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, right? Rather, what you would do, you would first convert that data, process that data into a form that is more interpretable, right? आप डायरेक्ट क्या करोगे? आप डेटा मिला डिसीजन बनाओगे ना क्या? डेटा मिला डिसीजन नहीं। आप क्या करोगे? यू विल ट्रांसफॉर्म दैट डेटा इनटू समथिंग दैट इज मोर इंटरप्रेटेबल। बताओ हाँ कि ना। बताइए हाँ कि ना। You will यस सर। put the data in a what? In a simpler format, right? In a simpler format, जो बाद में हो सकता है डिसीजंस हेल्प करने में आपका हेल्प, डिसीजंस मेक करने में आपका हेल्प करे। बट द फर्स्ट प्रोसेस इज that it should be easily understood, right? It should be, it can be interpreted by the user, right? So the first part of that is just expressing the data in a simpler format, which is more easily understood, which can be easily interpreted by the user. And that is what descriptive analysis does. Because when you're working with data, there's large data in a simpler format. अगर मैं आपको लाख पॉइंट दे दूंगा, आप क्या करोगे? डायरेक्ट उससे कुछ सोल्यूशन निकाल पाओगे? नहीं। आप क्या करोगे? रादर यू विल फाइंड स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स इन द सेंस यू विल से फाइंड मीन ऑफ द डेटा, मीडियन ऑफ द डेटा, मोड ऑफ द डेटा। ये सब निकालने की कोशिश करोगे। सबको ये तीनों का मतलब पता है ना? याद है इसको अपने क्या कहते थे? वी यूज टू कॉल दीज थ्री थिंग्स व्हाट? वी यूज टू कॉल दीज थिंग्स द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा। बताओ हाँ कि ना। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी याद है? मीन, मीडियन, मोड होते थे, राइट? यस सर। सिमिलरली और क्या निकाल सकते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन सीखा वेरिएंस। था, वेरिएंस, राइट? और क्या सीखा था हमने? रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, स्क्यूनेस। राइट? सॉरी, स्क्यूनेस है, स्क्यूनेस। क्यूनेसेस। So all of these are what? कर्टोसिस। Kurtosis, right? All of these are your सैंपल स्टैटिस्टिक्स। आप उन सैंपल, उस बड़े डेटा के बेसिस पे कुछ स्टैटिस्टिक्स निकालोगे, एम्पेरिकल, मतलब उस ऑब्जर्वेशन, उन सारे सैंपल्स के बेसिस पे कोई मेट्रिक निकालोगे, एंड दैट मेट्रिक will help you interpret the data, will help you understand the data, will help you summarize it, is more interpretable। समझ गए? यप।
तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का जो मोटिव है वो ये नहीं है कि आप डायरेक्ट डिसीजंस ले लो, डायरेक्ट कंक्लूजन पे पहुंच जाओ, ठीक है, बल्कि उसका क्या पर्पस है, टू डिस्क्राइब द डेटा, दैट्स वेयर डिस्क्रिप्टिव कम्स फ्रॉम। इट हेल्प्स यू गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा, इट हेल्प्स यू डिस्क्राइब द डेटा जो आपको एक्चुअली मिला है, पहले उसको डिस्क्राइब तो कर लो, पहले उस डेटा को तो समझ लो, उसके बाद अपने कंक्लूजन पे जाना, उसके बाद अपना कोई डिसीजन लेना। डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? Yes or no? Does that make sense? Everyone? Any questions? Let's write a couple of sentences about this descriptive analysis and then we'll go ahead. ठीक है, क्या कहता है descriptive analysis? It solves the problem by putting, by presenting the data, by presenting the data in a simpler format. In, which is more easily understood, which is more and interpreted by the user. Okay, that's the problem it solves. Yeah, but how does it do? It presents it. It summarizes the data. It summarizes the data and it in a way, in a format, it in a format that highlights trends or patterns. Or patterns. Yeah. समझ में आया? Hence it describes the data. समझ गया? कोई दिक्कत इसमें बताओ? कहते हैं व्हाट वर द की मेजर्स जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में यूज होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दोस की मेजर्स पहले, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। था तो उसको हम क्या क्या कह रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स, जो आपको बताता है आपका डेटा मेन में कहाँ कंसेंट्रेटेड है, राइट, व्हाट वेयर इज इट मोस्टली प्रेजेंट, राइट, सो दैट इज व्हाट मीन मीडियन मोड, आपका एवरेज क्या है एक तरीके से डेटा का, 58 परसेंटाइल क्या है, या फिर ऐसी कौन सी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आ रही है, राइट। और दूसरा है डिस्पर्जन पैरामीटर। डिस्पर्जन मतलब हाउ वाइडली इज द डेटा स्प्रेड, जैसे रेंज है, राइट, रेंज आपको हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन अभी तक हमने वैसे वी आर नॉट फॉर्मली इंट्रोड्यूस टू दिस मे बी, बट हमने क्लास 9-12 में किया हुआ है ये, and there's something called interquartile range. So these things help you study the like like interpret the data, right? It helps you describe the data. These are the things which are used in descriptive analysis. इसके अलावा I think like Yuval was saying, we have some few more things as well. For example, ये data का हम क्या और calculate कर सकते हैं? We can calculate things like skewness and kurtosis. Is this clear to everyone? What is descriptive analysis? उसमें किसी को कोई भी दिक्कत बताइए। Is this concept clear to everyone कि descriptive analysis में हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं? जैसे जैसे हम और सारे analysis के वो देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, वैसे वैसे और समझ में आएगा कि how is it different from them. But is descriptive analysis clear to everyone? बताओ। Yes, sir. Yeah, all Yes, good? sir. cool cool चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट विल कॉल इट इन्फरेंशियल एनालिसिस। हमने ये वर्ड पढ़ा होगा, इन्फरेंस, कंक्लूजन्स, याद है?
ये अपने जब एक्सपेरिमेंट्स लिखते थे फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो अपने पढ़ते थे ना इन्फेरेंशियल एनालिसिस, क्या करते थे वहां पे जब अपने कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे, याद है क्या? व्हाट डिड वी डू व्हेन वी रोट दोस स्टेप? क्या लिखते थे बताओ? वो हाउ डिड यू ऑल स्टार्ट दोस एक्सपेरिमेंट्स? रिमेम्बर? जो प्रैक्टिकल नोटबुक्स होते हैं अपने साइंस के, उसमें क्या करते थे? हाउ डिड वी गो अबाउट से? टेल मी गाइस, कैसे करते थे कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म? याद है क्या? क्या लिखते थे? एम, और क्या लिखते थे अपने? एम, मटेरियल नीडेड, और क्या करते थे? ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, यही सब होता था ना? हाँ कि ना? रिजल्ट रिजल्ट्स, राइट? रिजल्ट क्या होगा सर उसका? हाँ, सॉरी। रिजल्ट क्या होगा उसका? हाँ, रिजल्ट क्या होगा उसका, राइट? तो अपने क्या शुरू करते थे? पहले एम से शुरू करते थे, फिर मटेरियल नीडेड, फिर ऑब्जर्वेशंस या स्टेप्स फॉलोड, फिर कुछ आता था जिसको अपने कहते थे ऑब्जर्वेशन, फिर रिजल्ट या इन्फरेंस, राइट? सो द पॉइंट साइंस या वैसा कुछ होता था उसमें, वी यूज टू ड्रॉप समथिंग और वो कलर चेंज हो जाता था, तो अपने कह देते थे हाँ इसमें तो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस है, राइट? तो व्हाट वाज आवर एम देन? लाइक टू प्रूव कि इसमें वो है, right? To prove that rice contains this particular material, right? Then we followed particular steps, right? अपने क्या करते थे? अपने एक बोल ऑफ राइस लेते लेते थे, छोटा तीन चार मतलब 10-15 राइस के दाने लेते थे और उसमें करते थे, राइट? सो व्हाट वाज आर प्रोसेस ऑफ मॉडस ऑपरेंडी देयर? डिड वी चूज ऑल द राइस इन द वर्ल्ड और सबके ऊपर डाला? नहीं ना, कोई भी छोटा सा राइस ले लिया। व्हाई इज इट ऑफ importance here? What we are trying to say is, if you take entire data, if you take the population data, your analysis will become very cumbersome, will become very difficult. It is not feasible to collect the data for the entire population, especially when the population is large. ठीक है? तो अपने क्या करेंगे? एक छोटे सैंपल साइज पे ध्यान देंगे सबसे पहले तो। ठीक है? दैट सैंपल will assume is a good representation of that particular population. Okay? And then you will perform an analysis of the data from the sample instead of the entire population. जब ऐसा सैंपल एनालिसिस परफॉर्म करके वही सारे पैरामीटर्स निकालते हो जो जो हमने ऊपर निकाले, यही मीन, मीडियन, मोड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, इंटरक्वार्टाइल यूनिट्स, एंड देन यू ट्राई टू estimate those things for the population. That is what we call inferential analysis. ठीक है? मतलब क्या हुआ? हम हमारा वहां पे कुछ मानना था, हमने जब साइंस का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे हमारा कुछ मानना था ना। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स न्यूमेरिक होते थे, सो आई थिंक विल बी मोर रिलेटेबल कि से कोई पर्टिकुलर स्केल का अगर आप रीडिंग में अपना जो फोर्स लगाया उसका इफेक्ट आया है, ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते थे, राइट? तो अगर अपना reading just moved by 5%, will be accept the क्या हमारा जो मानना था, what we believed in, did it get proved? Yes or no? अगर मेरे मेरे एम में था कि कम से कम ये रिजल्ट 10% से मूव होना चाहिए और मैंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उससे केवल 5% से हिला, तो क्या मेरा जो ऑब्जर्व लाइक एम था वो प्रूव होगा? टेल मी गाइस, यस और नो? टेल मी, बताइए हाँ कि ना? What have I told? I've told that in a physics experiment, say you said कि by applying a particular force, your measurement in a particular reading should have moved by at least 10%, but it moved only by 5%. So your conclusion is not like it. You are not able to conclude कि उस force की वजह से कुछ effect आया ना, क्योंकि आपने क्या कहा कि इफेक्ट तब आएगा तो कम से कम 10% से रीडिंग चेंज होगा। वैसा ही चीज हम इन्फेरेंशियल एनालिसिस में भी करते हैं, क्योंकि हमने एक सैंपल लिया है, ठीक है, और वी अज्यूम दैट सैंपल रिप्रेजेंट्स दैट पॉपुलेशन। अगर अपने को सैंपल को यूज करके पॉपुलेशन के बारे में कुछ कंक्लूड करना है,
then there is something called hypothesis testing that we perform. ठीक है, this is a particular chapter in CS1 जो हम बाद में बहुत अच्छे से देखेंगे. But what you need to understand from here is that we are trying to make a sample out of a population. We assume that sample is a good representation of the wider population, right? We try to say get those same parameters, say mean, median, mode, standard deviation, right? And try to see how good is it an estimation of the population. समझ में आया? बताओ. Yes or no? Tell me, guys. Is this concept clear to everyone? Yes. Yeah, everyone else all good? Yes, Yeah, sir. चलो तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं कि what is inferential analysis, right? So let's write a problem statement. The problem statement is what? It is not feasible. It is not feasible. It is not feasible slash practical to collect data for the entire population. To collect data for the entire population. So what do you instead do? What is practical? It is thus practical. It is thus practical to gather data in respect of a sample. ठीक है? In respect of a sample. For example, population आपका अगर 1 million लोगों का, you just collect it for is used is and the wider population. आपने सैंपल लिया जो आपका पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, राइट? द एनालिसिस ऑफ दिस डेटा, द एनालिसिस ऑफ दिस डेटा, of this sample data is called what? Is called inferential. Does that make sense to everyone? बताओ समझ में आया? Yes or no? Is everyone clear with what inferential analysis is? किसी को कोई भी दिक्कत है इसमें? Yeah? The last part is the last form of analysis. That is the most interesting one, and that is the one which helps you based decisions, जिसको हम कहते हैं predictive analysis या predictive analytics भी आजकल इसको कहा जाता है. Very famous field of study again. What is predictive analysis? As the name suggests, now you have अपने inferential analysis से क्या निकाले? कुछ parameter के values निकाले, right? कुछ trends निकाले based on that sample. अब आप prediction कर रहे हो future events के बारे में, तब आप उसको कहते हैं predictive analysis. समझ में आया? ठीक है. सो व्हाट इज द बेसिस? आप डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस पूरे पॉपुलेशन के बारे में कुछ निकाल लो, ठीक है? मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी, देन डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस भी ले लो, ठीक है? बट हमेशा पॉपुलेशन के बारे में करना मुश्किल है. सो व्हाट डू? यू ड्रॉ सैंपल आउट ऑफ इट, राइट? यू गैदर डेटा फॉर ओनली अ सैंपल, और फिर वो सारे पैरामीटर्स एस्टिमेट करते हो एंड हाइपोथेसिस टेस्ट परफॉर्म करते हो. जब वो करते हैं हम उसको क्या कहते हैं? इन्फेरेंशियल एनालिसिस. अभी तक केवल पैरामीटर्स निकाले, बट अब जब उस पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर लिया, उन पैरामीटर्स के बेसिस में फ्यूचर प्रिडिक्ट करने गए, राइट? दैट इज व्हेन इट इज प्रिडिक्टिव एनालिसिस. फॉर एग्जांपल, हमारा जो एग्जांपल था कि फिटबिट्स है, स्मार्ट वॉचेस लोग पहनते हैं. you have sold a particular insurance company has sold these Fitbit smart watches, health watches to 1 million people, right? But वो पूरा डेटा नहीं लेगा. वो क्या करेगा? केवल 1000 पॉलिसी होल्डर का डेटा लेगा. उस 1000 पॉलिसी के डेटा के लिए कुछ पर्टिकुलर वो निकालेगा, क्या बोलते हैं, स्टेटिस्टिक्स निकालेगा, से मीन, मीडियन, मोड, एंड वो देखेगा कि वो 1000 लोग के लिए वो ट्रू होल्ड करते हैं क्या वो पैरामीटर्स, राइट?
is it comparable to the mean of the entire population of 1 million people as well, right? If those are comparable तो क्या करेंगे, हाँ ये parameters fit to use है, हम sample को use कर सकते हैं to analyze the entire population. तो वो हुआ inferential analysis. अब एक बार inferential analysis कर लिया, you have got your say way of like how the data behaves, आप क्या करोगे, आप उन parameters को use करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करोगे, दैट इज प्रिडिक्टिव एनालिसिस. समझ में आया? यस और नो? द मोस्ट common form of analysis, predictive analysis, that we'll learn about in a course of statistics is that of regression. Regression मतलब आप जो भी ट्रेंड है डेटा का विथ रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल्स और मल्टीपल वेरिएबल्स, उसको फ्यूचर में भी कंटिन्यू करवाओगे तो हम उसको कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस. ठीक है? द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ दैट इज लीनियर रिग्रेशन, जो हमने पढ़ा भी था समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. याद है हमने क्लास 11-12 में ऐसा कुछ पढ़ते थे, y इक्वल्स mx प्लस c. यस और नो? याद है सबको? बताइए हाँ की ना. टेल मी गाइस, y इक्वल्स mx प्लस c पढ़ा था ना? कहाँ खो गए सब? बताइए. टेल मी गाइस, यस और नो? y इक्वल्स mx प्लस c किसी को याद नहीं? सॉरी गाइस, आई नीड सम yeses टू मूव ahead. क्या होता था y इक्वल्स mx प्लस c में? ये m क्या होता था, c क्या होता था? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होता था, राइट? यूज्ड टू हैव दिस m एज द स्लोप पैरामीटर, c एज द इंटरसेप्ट पैरामीटर, या ग्रेडियंट या इंटरसेप्ट जिसको कहते थे. तो इट्स बेसिकली रिलेटिंग टू वेरिएबल्स y एंड x, राइट? तो वैसा ही हम रिलेशन लीनियर रिग्रेशन में भी बनाते हैं. इट्स नथिंग बट दिस सिंपल लीनियर रिलेशन वाला जो लाइन है उसको ही हम लीनियर रिग्रेशन कहते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी यूज. ओके, तो ये है प्रेडिक्टिव एनालिसिस का एक पर्टिकुलर तरीका, लीनियर रिग्रेशन. देयर आर मेनी अदर वेज, राइट? विद द एडवेंट ऑफ डेटा साइंस एंड ऑल ऑफ दोस स्टफ, predictive analysis has gotten much more complex, much more useful and much more like advanced as well. ठीक है? So एक दो लाइन लिख लेते हैं predictive analysis के बारे में. It extends the principle of inferential analysis in order to analyze past data. अब आपने past data को analyze किया and future predict किया. In order to analyze the past data and make predictions about future events. Okay, so that is what predictive analysis is about. Now there can be various techniques that you can use, right, to be able to do that. One of the most like used technique is what? Regression analysis. Like we thought about regression analysis, and regression analysis का एक particular way क्या है जो हमने अभी पढ़ा, y equals mx plus c वाला, जिसको हम linear regression भी कहते हैं. ठीक है, linear regressions. तो what you do is वही कि आपका ये जो y होता है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है, जो आपका जिस डेटा पॉइंट को आप निकालने की कोशिश कर रहे हो. mx प्लस c में आपका जो x होता है दैट बिकम्स ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसका आपके पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, राइट? सो दैट बिकम्स योर रिग्रेशन एनालिसिस. बताओ, so far so good to everyone? Are these three forms of data analysis clear to everyone? इसमें किसी को कोई भी दिक्कत? Any questions guys? किसी को कोई भी दिक्कत बताइए. Anyone? सही है क्या? बताइए. Yes or no? I need yeses from everyone. बताओ यार. Yes, sir. या चलो, अगर यहाँ तक सही है, नेक्स्ट पार्ट पे क्विकली आते हैं. द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर इज द डेटा एनालिसिस प्रोसेस. ठीक है, उन्होंने 1 से लेके 9 आपको 9 प्रोसेसेस दिए. नाउ दिस इज कम इन द पास्ट.
तो प्लीज इसको अच्छे से देख लेना, समझ लेना कि क्या ये डेटा एनालिसिस के स्टेप्स हैं। मैं अभी ऑन अ वेरी हाई लेवल विल गो थ्रू द स्टेप्स, ठीक है। तो सबसे पहले है कि आपके द पहला स्टेप इज डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स जो आप चाहते हो आपका डेटा एनालिसिस का रिजल्ट मीट करे, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव दैट यू वांट योर डेटा एनालिसिस का एक्सरसाइज टू मीट, ठीक है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, इन द वर्ल्ड ऑफ एक्चुअली things are already very complicated, right? You have a lot of big amount of data. You have a lot of objectives that go hand in hand, or kabhi objectives can be say contradictory or very overlapping with each other, right? In that case, it is very um, like very important to just define those objectives at the very beginning कि आप चाहते क्या हो, आपका डेटा एनालिसिस क्या मीट करे, ठीक है। सो दैट्स नंबर वन। अब आपने एनालिसिस का एम कर लिया डिफाइन, तो आपको चाहिए कि इसके लिए क्या डेटा आइटम्स मुझे चाहिए। सो द नेक्स्ट पार्ट इज आइडेंटिफाइंग दोज डेटा आइटम्स दैट यू नीड। एंड एक बार आइडेंटिफाई कर लिया तो नेक्स्ट पार्ट इज कलेक्टिंग द डेटा आइटम्स, राइट। अब डेटा आइटम कलेक्ट कर लिया, तो कलेक्ट करने के बाद आपका डेटा हमेशा सही फॉर्मेट में नहीं रहता, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू process the data, format the data. For example, if you're working on an Excel sheet, to bring that into that Excel sheet. अगर आप और कोई मॉडल पे काम कर रहे हो और कोई सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, just bringing that data for analysis into that particular model, right? Again, data is not always clean, so you have to clean the data. कभी कभी missing values होंगे, dates में कैरेक्टर होगा, जेंडर में मेल फीमेल की जगह या अदर की जगह और कुछ लिखा हुआ होगा, राइट। समथिंग दैट्स नॉट लाइक डेटा वैलिडेशंस परफॉर्म करने होते हैं, इनकंसिस्टेंट वैल्यूज चेक करनी होती है। डेट ऑफ बर्थ में ऐसा फ्यूचर का ईयर दे दिया गया है, राइट। सो ऑल ऑफ दैट इनकरेक्ट डेटा, मिसिंग डेटा, अनयूजुअल डेटा को क्लीन करना है, राइट। वंस वी हैव डन ऑल ऑफ दैट, क्या किया हमने, ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया, उसके हिसाब से डेटा कलेक्ट किया, डेटा को कलेक्ट कर पहले आइडेंटिफाई किया कि कैसा डेटा चाहिए, कलेक्ट किया, डेटा को प्रोसेस किया, क्लीन किया, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज नाउ परफॉर्मिंग एन एनालिसिस, द एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जो हमने सीखा अभी तक, डिस्क्रिप्टिव, इन्फेरेंशियल या प्रिडिक्टिव, तीनों एनालिसिस में से कोई भी एनालिसिस कर सकते हैं। इट कैन बी लाइक सबसेट ऑफ द टू एज वेल, और तीनों हो सकते हैं, कौन सा करना है ये अपने ऊपर है, ठीक है। देन इट कम्स टू मॉडलिंग द डेटा, ठीक है। मॉडलिंग द डेटा मीन्स उसको एक पर्टिकुलर मॉडल में फिट करना, right? Always performing the data analysis on a very high level does not help you to interpret the results, right? What helps you to do that is fitting that into a particular model, in a particular equation, say in a particular form of regression analysis. All of that is modeling the data. And then once you've got modeled the data, you've got your results, it is also important to communicate the results. So often it is called that actuaries are not very good communicators, but the point is actuaries have to be good communicators, because what happens is we work on very complicated stuff and our audience often is not that very technical in nature, right? They are not very technically sound in nature. So it is also important for us to be very good in our communication skills कि हम उतने complex चीजों को एक नॉन टेक्निकल ऑडियंस को समझा पाए, राइट। सो कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, या। एंड द लास्ट पार्ट इज दैट मॉनिटरिंग द प्रोसेस, फिर पूरे प्रोसेस को देखना कि इस प्रोसेस में कहीं कुछ इंप्रूवमेंट जरूरी है क्या, कभी डेटा पुराना हो गया तो डेटा को अपडेट करने की जरूरी है क्या, कोई पर्टिकुलर स्टेप हमने मिस कर दिया, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव हमने मिस कर दिया, तो उसको कैसे इंप्रूव करें। ऑल ऑफ दैट स्टेप इज आल्सो इंपॉर्टेंट, सो continuously monitoring the entire process as well. Make sense, guys? Any questions? समझ में आया बताओ सबको? Yes, sir. Yeah. चलो. Now the next part of it is the sources of data, जिसके ऊपर कुछ MCQ questions भी आए हुए हैं पास्ट में, तो अपने को ये समझना बहुत जरूरी है कि डेटा के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, कैसे कैसे टाइप होते हैं, ठीक है। अब देखो डेटा का जो आजकल द वे डेटा का स्ट्रक्चर इज, राइट, यूजुअली क्या होगा, इट विल बी ऑन अ कंप्यूटर, राइट। आजकल पेन एंड पेपर डेटा तो उतना होता नहीं है। अच्छा, इंश्योरेंस भी खरीदने जाओ तो ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं, so all of this data is coming via what do you call via electronic form, so as to say, ठीक है। तो आप लोगों ने इन फॉर्मेट्स के बारे में या तो सुना होगा या देखा होगा, समथिंग कॉल्ड जेसॉन फॉर्मेट होता है, राइट, कंप्यूटर बेस्ड होता है। एपीआईज होते हैं जो आपको ये जेसॉन फॉर्मेट कलेक्ट करके देते हैं,
right? But यहाँ पे CS1 in this chapter we are not talking about what are those formats of data. We are talking about what are the sources of data, कि कहाँ कहाँ से डेटा आ सकते हैं. ठीक है. तो the first type of data that they are talking about, या तो आप लोगों ने ये आई थिंक 9 10 11 में कहीं ना कहीं स्टेटिस्टिक्स में पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, या इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, इज कॉल्ड अ प्राइमरी सेकेंडरी. ये सब जो डेटा फॉर्म्स अपने पढ़ते थे ना, तो थोड़ा बहुत ये उनकी बात कर रहे हैं, राइट? सो द फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा दैट दे आर टॉकिंग अबाउट इज प्राइमरी डेटा. ठीक है. क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? आप डायरेक्ट डेटा को कलेक्ट कर रहे हो फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशनल स्टडी. ठीक है. यू आर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, राइट? यू आर परफॉर्मिंग अ स्टडी एंड देन यू आर डायरेक्टली कलेक्टिंग डेटा ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टडी. तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डेटा. ठीक है. हाँ कि ना? ये बात सबको क्लियर है ना कि व्हाट इज प्राइमरी डेटा? ये थोड़ा कॉन्सेप्ट सबको याद भी होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा कि प्राइमरी डेटा, डायरेक्टली कलेक्टेड डेटा को अपने क्या कहते हैं? प्राइमरी डेटा कहते हैं. ठीक है. इट इज gathered, it is directly gathered as an outcome of a particular study or an design experiment. Yeah? Yes or no? Tell me guys. याद है सबको? Yes, sir. Yes, sir. I'm writing gathered as an outcome. Again, all of this is also written in your textbook, so you may write it, may not write it. But if you want to, just go ahead and write it as a outcome of a designed experiment or a form of an observational study. और ऑब्जर्वेशनल स्टडी. द गुड थिंग इज कि डेटा डायरेक्ट रहता है, तो आपके पास उसका पूरा आपने खुद उसको कलेक्ट किया, गैदर किया, राइट? सो द गुड थिंग अबाउट दिस डेटा इज यू हैव एंटायर नॉलेज, राइट? कि डिटेल्स क्या है इन डेटा के, वो हाउ वाज दिस डेटा कलेक्टेड, पॉसिबल सोर्सेज ऑफ इनएक्यूरेसी क्या है. सो you would most probably be aware of the issues in the data as well. You would have a good understanding of the data. ठीक है. And it is important for us to know this that as well. ठीक है. For example, whether any validation was performed. मतलब आज आप कोई भी डेटा अगर कलेक्ट करवाते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई फॉर्म भरते हो, ठीक है, गूगल फॉर्म ही भरते हो, कभी कभार आप मोबाइल नंबर अगर 10 नंबर्स वाला नहीं डालोगे, वैलिडेशन एरर आएगा ना. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो वेदर वैलिडेशन वाज परफॉर्म्ड एट कलेक्शन का सोर्स. ठीक है. क्या डेटा ऑटोमेटिकली कलेक्ट किया गया था कि मैनुअल कलेक्ट किया गया था? क्या इसके कोई लिमिटेशंस है? सो ऑल ऑफ दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू नो जब प्राइमरी डेटा यूज कर रहे हैं. ठीक है. क्योंकि सेकेंडरी डेटा में तो यूजुअली आप किसी और सोर्स से वो डेटा सोर्स कर रहे हो, तो वो उनमें लिखा हुआ रहता है. ठीक है. उनके समरी में लिखा हुआ रहता है. जब प्राइमरी डेटा करे, द एनालिस्ट इज हिमसेल्फ और हरसेल्फ ट्राइंग टू सोर्स दैट डेटा. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो हाउ एक्चुअली वाज डेटा कलेक्टेड, राइट? मैनुअली और ऑटोमेटेड. Was there any validations? कैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया गया अगर मैनुअल नहीं है, क्योंकि ऑल ऑफ द एनालिसिस टेक्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, राइट? हो सकता है मैनुअल से इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन में कुछ गलतियां होती हो, राइट? एंड देन इसके लिमिटेशंस क्या है. ठीक है. सो दैट इज योर प्राइमरी डेटा, राइट? यस और नो? या. नाउ व्हाट डिड वी से इन द लास्ट पार्ट कि हमेशा हम इस entire population data पे work नहीं करते हैं. What do we do, guys? Tell me, what do we do? We perform what? So we take out the sample and Exactly. study that sample. Exactly. So we perform The something called replacement of the total population. exactly. We perform something called sampling. ठीक है. तो हम बायस रिड्यूस करने के लिए समझ लो, या फिर फॉर एग्जाम्पल उसमें 1000 अगर आपकी पॉपुलेशन में वैल्यूज है, 1000 में से कोई कोई ऐसी वैल्यूज हो सकती है जो बायस्ड हो या मतलब जो सही ना हो. ठीक है. तो उनको रिड्यूस करने के लिए या फिर उनको रिड्यूस या उनका इफेक्ट रिड्यूस करने के लिए व्हाट डू यू परफॉर्म अ सैम्पलिंग. आप रैंडमली उनमें से कुछ नंबर्स उठा लोगे. ठीक है. सो दैट इज समथिंग कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. आप एट अ वेरी मतलब विदाउट एनी पैटर्न यू विल जस्ट पिक अप से 100 नंबर्स फ्रॉम इट. ठीक है. दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. ठीक है. दूसरा तरीका होता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. याद है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग किसी को? डज एनीवन रिमेंबर व्हाट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मींस फ्रॉम द हाई स्कूल डेज? एनीवन? तो आप क्या करोगे? यू विल डिवाइड द पॉपुलेशन डेटा इनटू ग्रुप्स. फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपकी ओरिजिनल पॉपुलेशन में 3 इनकम लेवल है. अब आप
प्योर सिंपल, और तीनों में से 1000 थे, सॉरी 900 पीपल थे, 300 300 300. नाउ व्हेन यू डू अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, देयर इज अ गुड चांस कि अब जब आप 90 लोग का पॉपुलेशन ड्रॉ कर रहे हो तो पहले में से 40 आए, दूसरे में से 40 आए, तीसरे में से केवल 10 ही आए, राइट. सो तीसरे कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन कम हो गया मेरे सैंपल में, राइट. बट यू वांट एवरी कैटेगरी टू बी रिप्रेजेंटेड से इक्वली इन द सैंपल. तो आप क्या कर सकते हो, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कर सकते हो. आप पहले वाले सैंपल से 30 अलग उठाओगे, ठीक है, पहले वाले 300 के ग्रुप से, दूसरे वाले 300 के ग्रुप से 30 अलग उठाओगे, और तीसरे वाले 300 के ग्रुप से 30 लोग के सैंपल अलग निकालोगे, और फिर वो 30 का सैंपल कंबाइन करके इट विल बिकम योर 90 टोटल सैंपल, राइट. सो व्हाट आर वी डूइंग in stratified sampling? We are splitting it into groups or stratas, ठीक है, based on a particular criteria. So it is what? Splitting your population into groups or stratas based on some criteria, and then sampling into each of those groups. याद है बताओ सबको, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत? Any questions guys? याद नहीं भी है तो समझ में आ रहा है कि प्राइमरी डेटा कलेक्शन करने के बाद डायरेक्टली उसको यूज नहीं करते हो. यू डू व्हाट? यू group the data into based on some criteria, you split it into various groups, and then perform a sampling, a random sampling into each of those groups. समझ में आया? या एनीवन? कोई भी दिक्कत बताओ. अगर ये सबको क्लियर है, देन देयर इज वन मोर थिंग दैट दे हैव रिटन हियर, ठीक है. और इस पे भी एमसीक्यूज मैंने देखे हैं पास्ट पेपर्स में, सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स एज वेल. एक 4 टाइप्स ऑफ डेटा यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कलेक्शन प्रोसेस और आपका डेटा कैसा है. दे आर बेसिकली 4 फॉर्म्स ऑफ डेटा दैट दे आर सेइंग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. द फर्स्ट वन दे आर सेइंग इज क्रॉस सेक्शनल डेटा, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल डेटा, ठीक है. इसमें क्या होता है? So cross sectional data is when you record values of the variable, ठीक है, for each case at a single moment in time. आपके जितने भी वैल्यूज रिकॉर्डेड है एक पर्टिकुलर वेरिएबल के, एक ही मोमेंट इन टाइम के हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कैलकुलेट किया कि पिछले हफ्ते एक पर्टिकुलर स्टोर में कितना अमाउंट स्पेंड किया गया हर कस्टमर के द्वारा. तो द time variable stays constant. When you are talking about cross sectional data, you are taking a time variable that's constant. So हर observation के लिए जो time का जो measurement है, it stays the same. It stays during that particular week. समझ में आया ये सबको? Yeah. So what can I say about cross sectional data? It records your values for each case, for every observation, for each case at a single point in time, at a single moment in time. Okay, so आपका time variable stays the same for everything, so that is cross sectional data. The next type of data that they have introduced here is called longitudinal data. अब longitudinal data में क्या है? आप intervals पे record कर रहे हो, so it is exact opposite in a way for longitudinal data as compared to cross sectional data. जब आप क्या कह रहे हो, I record values at interval over time. For example, हम वो शॉपिंग वाले की बात कर रहे थे ना, यहाँ पे अगर अब मैं बात करूं हर वीक में एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए लास्ट ईयर में हर वीक में कितना परचेज किया गया, ठीक है, वहां पे क्या था, मल्टीपल एलिमेंट्स सिंगल टाइम. यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट मल्टीपल टाइम पीरियड्स ओवर अ पर्टिकुलर ईयर. समझ में आया? तो क्या है, रिकॉर्डिंग वैल्यूज over a interval, recording values at intervals over time. That is what? That is longitudinal data. ये बताओ, ये दोनों क्लियर है सबको? ये दोनों टाइप क्लियर है कि नहीं है? फिर ये अपने दूसरे, तीसरे और चौथे पे जाएंगे. Tell me guys, are these two clear to everyone? Yes, sir. Yeah. The third is sensor data.
विच एज द नेम सजेस्ट डेटा सेंसर हो गया, मतलब डेटा आपको पार्शियली पता है, राइट? मूवीज वूवीज में होती है ना सेंसरिंग, तो यहाँ पे क्या है, आपको डेटा ओनली पार्शियली पता है। दिस पार्शियल डेटा नोइंग आई थिंक थोड़ा बहुत CS1 में कवर्ड है, एक या दो जगह, बट कंप्लीटली CS2 में और आप इसका यूज पर्पस देखोगे। बट आपको क्या पता, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज ओनली पार्शियली नोन, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल is only partially known, that is censored data. Okay, partially known. And finally we are talking about truncated data. अब देखो ये बहुत लोगों के कंफ्यूजन रहता है कि ट्रंकेटेड और सेंसर्ड में अब क्या फर्क है। ठीक है, अब सेंसर का ये मतलब हुआ कि आपको, सॉरी समवन सेइंग एनीथिंग, रक्षिता यू आर सेइंग समथिंग? नो, चलो, सेंसर डेटा के बारे में जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि एक वेरिएबल है, उसका आपको कुछ डेटा पता है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, बट पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, ट्रंकेटेड डेटा ये हुआ, आपके पास 10 वेरिएबल थे, समझो 8 का ऑब्जर्वेशन है, 2 के बारे में कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं है, उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, दैट इज ट्रंकेटेड डेटा। व्हेन यू हैव सम वेरिएबल्स और उनके बारे में नॉलेज है, बट सम वेरिएबल्स आर नॉट रिकॉर्डेड, so they are completely unknown। ठीक है, सेंसर डेटा में आपको पार्शियल नॉलेज है उनके बारे में, बट ट्रंकेटेड डेटा में यू हैव नो नॉलेज, देयर इज नो मेजरमेंट ऑफ दैट डेटा, सो यू आर कंप्लीटली अननोन। समझ गए? तो क्या लिख सकते हैं, मेजरमेंट्स ऑफ सम वेरिएबल्स नॉट रिकॉर्डेड, so completely unknown, so completely unknown। Okay, that's your truncated data। Is this clear to everyone? अपने 5-10 मिनट और करेंगे, ठीक है, अपने कोशिश करेंगे 5-10 मिनट में कंप्लीट कर लें। ऑल गुड? एनीवन? ठीक है, यहाँ पे एक और अब नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, बिग डेटा करके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट कह रहे हैं? बिग डेटा। अगेन इन द वर्ल्ड ऑफ मशीन लर्निंग, इन द वर्ल्ड ऑफ AI, अ लॉट वेरी वेल यूज डेटा। ठीक है, बट इट इज नॉट वेरी वेल डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऐसे बिग डेटा पे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि बिग डेटा के कुछ मतलब प्रॉपर्टीज होते हैं। क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? पहला कि इट साइज इज ह्यूज। ठीक है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसमें से बहुत वैल्यूज ऐसे भी हो सकते हैं जो नल वैल्यूज हो, जो एम्प्टी वैल्यूज हो, तो आपको डेटा को क्लीनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बट द फर्स्ट थिंग अबाउट बिग डेटा, एज द नेम सजेस्ट, इट्स ह्यूज इन नेचर। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग अबाउट बिग डेटा इज द स्पीड ऑफ द डेटा। सो व्हाट डू आई मीन बाय द स्पीड ऑफ द डेटा? जो आपका अराइवल का रेट है डेटा का, दैट इज वेरी हाई। फॉर एग्जाम्पल, लाइक वी आर टॉकिंग क्रेडिट कार्ड कंपनी, कितने क्रेडिट कार्ड्स बांट रखे हैं अक्रॉस ऑल कस्टमर्स, राइट? अगर हम उनका डेटा के बारे में बात करें कि उनका कंजम्पशन का डेटा जो उनके पास आता है, एक एक सेकंड में कितने डेटा पॉइंट्स आते होंगे कि कितने, किसने कहाँ ट्रांजैक्शन किया, कितने रुपए का ट्रांजैक्शन किया, किस मोड से ट्रांजैक्शन किया, कितने यहाँ पे डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, एंड इन रियल टाइम दे आर कमिंग एट अ वेरी फास्ट रेट। ठीक है, तो ऐसे डेटा को एनालाइज करना है जो एक रियल टाइम में आ रहा है और बहुत ही क्विकली आ रहा है, बहुत ही फास्ट रेट पे आ रहा है। ठीक है, तो द डेटा हैज अ गुड साइज, द डेटा हैज अ गुड स्पीड। द नेक्स्ट थिंग इज द डेटा ऑल्सो हैज अ गुड वेराइटी, मतलब उसमें बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ऑफन अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेस से आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड कंपनी, उसके पास केवल एक सोर्स नहीं है, उसके पास और भी 50 सोर्स है, कुछ सिबिल का डेटा है, कुछ इंडस्ट्री सोर्स से कुछ डेटा आ रहा है, खुद के कस्टमर से कुछ डेटा आ रहा है, और कोई मर्चेंट ट्रांजैक्शन हो रहा है, मर्चेंट ट्रांजैक्शन से डेटा आ रहा है। सो देयर आर मल्टीपल सोर्सेज, देयर इज वैरायटी इन द वे डेटा इज कलेक्टेड, राइट? आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेटा मिलता है, आप मशीन ट्रांजैक्शन करते हो उसको एक अमाउंट ऑफ डेटा मिलता है, आप एटीएम विड्रॉल कर लेते हो उसको एक अमाउंट ऑफ, एक तरह का डेटा मिलता है। सो द वेराइटी, डेटा का वैरायटी है, अनस्ट्रक्चर्ड है, डिफरेंट सोर्सेज है, सो देयर इज वैरायटी इन द डेटा। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज रिलायबिलिटी।
अच्छा, अगर आप लोग को मैं ऐसा डेटा कहूँ जो बहुत बड़ा है, तो वो रिलायबल है कि नहीं है? एज डेटा का साइज इंक्रीजेस, व्हाट डू यू थिंक, इट बिकम्स रिलायबल और लेस रिलायबल? बताओ तो। अगर मेरा टोटल डेटा साइज इंक्रीज हो रहा है कहीं पे, तो वो डेटा रिलायबल बनता है कि नहीं रिलायबल बनता है? यूजुअली एज डेटा का साइज इंक्रीजेस द सैंपल बिकम्स मोर रिलायबल, बट अ प्रॉब्लम अलोंग विद दैट इज थिंग्स लाइक वैरायटी, थिंग्स लाइक स्पीड। ठीक है, तो बिग डेटा का प्रॉब्लम ये है ना, दैट उसका रिलायबिलिटी निकालना बहुत मुश्किल है, एंड इट कुड वेरी ओवर टाइम, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, लेट्स स्टिक टू दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल। दे कैन साइबर अटैक, जब सर्वर डाउन हो, ट्रांजैक्शन ही ना हो, राइट? तो उस वजह से कभी कभार क्या होता है, बिग डेटा का जो रिलायबिलिटी है ना, वो वेरी करता है। कभी कभी बहुत रिलायबल है, ठीक है, बहुत अच्छे से सिस्टम चल रहा है, एवरीथिंग इज गुड, बट कभी कभी वो वेरी करता है वो रिलायबिलिटी। डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? यस और नो? बिग डेटा का मतलब समझ में आया? ये चार कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा अच्छे से समझ लो। कोई भी बिग डेटा का क्वेश्चन आता है ना, दीज फोर कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। या डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? एनी क्वेश्चंस? टेल मी गाइस, ऑल गुड? अगर यस। ये क्लियर है, लास्ट एक टॉपिक है, जस्ट बेयर विथ मी फॉर अनदर 5 minutes मैक्स। दैट टॉपिक्स इज रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च। इसका मतलब क्या हुआ? आपने कोई डेटा एनालिसिस परफॉर्म किया, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अंडरटेक किया, समझो वो वन टाइम ही प्रोजेक्ट था, ऐसा नहीं है कि बार बार परफॉर्म करना है, बट स्टिल दैट रिसर्च शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। मतलब अगर कोई और, इफ समवन एल्स takes a similar input, takes a similar model, they should get a similar output। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तो कोई एक पर्टिकुलर रिजल्ट तक पहुंच गए, लेकिन अगर कोई और इस पर्टिकुलर एक सिमिलर डेटा को ले, सिमिलर मॉडल ले, उसको कोई और रिजल्ट ही मिल जाए। ठीक है, so your statistical analysis should be reported in a manner, right, that when some independent third party comes and repeats that analysis, they arrive at the same result। वहां कॉन्सेप्ट आता है किसका? रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट का। ठीक है, समझ में आया? बताओ हाँ कि ना? the result should be reproducible, right? They should reach a similar result by using the same inputs, same methodology, and their output should be very similar। yes or no? ये मानते हो सब लोग? हाँ कि ना? अगर आपने कोई एक रिसर्च परफॉर्म कर लिया, ठीक है, कह दिया कि मैंने पॉलिसी होल्डर्स के लिए इतना प्रीमियम्स रखा, सही है, ठीक है, बट कोई अगर आपका रिजल्ट का कोई वैल्यू बचेगा क्या, कि कल कोई आके कोई और एनालिसिस परफॉर्म करेगा यूजिंग वेरी सिमिलर इनपुट्स एंड यूजिंग वेरी सिमिलर मॉडल्स, दे विल गेट अ कंप्लीटली डिफरेंट आंसर। डज योर रिसर्च होल्ड एनी वैल्यू देन? बताओ हाँ कि ना? नहीं ना? सो no, yeah, so what is important? Your research should be reproducible, even if it does not give you the exact same result, it should give you at least similar results। ठीक है, यूजुअली आज की दुनिया में एग्जैक्ट सिमिलर रिजल्ट मिलना मुश्किल है, क्योंकि डेटा बड़ा होता है, लोगों के सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होते हैं चीजों के, राइट? मॉडल्स वेरी अ लॉट एज वेल, बट एटलीस्ट दे शुड रीच टू सिमिलर रिजल्ट्स। मेक सेंस? हाँ कि ना? बताओ। एनी क्वेश्चंस गाइस आउट हियर? चलो देखो, इस चैप्टर में इतना ही है। वी स्टार्टेड विद द वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस, फॉर्म्स ऑफ डेटा एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव, inferential, predictive। We saw what are the steps we take to perform those data analysis, right? Then finally we looked at what is primary data, the types of data. We saw at primary data, we saw various types of sample, we saw various forms of data collection, and finally we saw big data and reproducible research। बताओ किसी को कोई भी दिक्कत है यहाँ तक? एनी क्वेश्चंस गाइस? नो सर। नो? सर एक डाउट था। हाँ हाँ। सर वो एक ये चैप्टर में वो होता है ना, द लॉ ऑफ लार्ज लार्ज नंबर, नंबर्स। यस, सर द लॉ। वो क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में बोल राइट दो ना। राइट।
युगल देखो, द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स ना, आगे CS1 के 2-3 चैप्टर हैं, उसमें जब साथ में आई विल इंट्रोड्यूस दैट, आई एम नॉट सेइंग यू विल नॉट इंट्रोड्यूस इट, बट आई विल इंट्रोड्यूस इट along with those chapters and it will become much more interesting then. ठीक है, अभी आई विल इंट्रोड्यूस इट एट अ वेरी हाई लेवल, समझ में भी नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है, बाद में एक आर जब शुरू करेंगे ना तो उसके साथ एक चैप्टर करेंगे, उसमें बहुत मजा आएगा वो समझने में। ठीक है। ठीक है सर, ओके सर। हाँ, एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? ऑल गुड? चलो, in that case I'll close the class for today. Thank you everyone. Bye bye. थैंक यू सर।